السلام علیکم۔ فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں، دنیا کے سفر کی آج کی ہماری منزل جنوبی ایشیا میں واقع ایک نہایت عظیم الشان، خوبصورت اور مثالی ملک ملائیشیا ہے، جس نے صرف چند سالوں میں اپنی خوبصورتی، معاشی ترقی اور بہترین معیار زندگی کی کامیابیوں پر اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا۔ یہ مقام ملائیشیا نے وہاں کی مضبوط اور نڈر قیادت کی وجہ سے حاصل کیا۔ اس لیڈر کا نام مہاتیر بن محمد ہے۔ تو دوستو، آج ہم ملائیشیا کی تاریخ، خوبصورتی، سیاحتی مقامات اور بے باک لیڈر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 3,30,803 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملائیشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 66واں بڑا ملک ہے، جبکہ ملائیشیا کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ملائیشیا دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے۔ ملائیشیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جبکہ ملائیشیا کا دوسرا بڑا مذہب بدھزم ہے۔ ملائیشیا میں بدھزم کو ماننے والوں کی تعداد ملائیشیا کی آبادی کا تقریباً 20% ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی 9.2%، ہندو 6.2% اور 3.4% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ ملائیشیا کا لفظ تامل اور لاطینی زبان کے دو الفاظ مالے اور سیا کو ملانے سے نکلا ہے۔ مالے لفظ تامل زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ یا علاقہ لیے جاتے ہیں، جبکہ سیا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ملائیشیا کی تاریخ کی اگر بات کریں تو ملائیشیا میں تقریباً 40,000 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ ملائیشیا میں سب سے پہلے نیگریٹوس لوگ آباد تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں انڈیا اور چائنا سے تاجروں نے ملائیشیا کا رخ کیا۔ دوسری اور تیسری صدی میں یہاں پر بندرگاہیں اور ساحلی شہر تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ ملائیشیا میں انڈین اور چائنیز کلچر کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ مالے لوگوں نے چوتھی اور 5ویں صدی عیسوی میں ہندو اور بدھزم کو اپنا مذہب بنایا۔ کنگڈم آف لینگ کیشوکا دوسری صدی عیسوی میں ملائیشیا کے شمالی علاقے میں قائم ہوئی، جو کہ 15ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران ملائیشیا کا زیادہ تر حصہ سروی جیان ایمپائر کے قبضے میں تھا۔ اسلام کا ظہور 14ویں صدی عیسوی میں ملائیشیا میں ہوا۔ 15ویں صدی کے اوائل میں سنگاپور کے بادشاہ نے ملائیشیا میں ملائیکا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ملائیکا اس وقت تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے پورے خطے میں بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ 1511 میں پرتگال نے ملائیکا کو فتح کر لیا، جبکہ 1641 میں ہالینڈ نے پرتگال سے یہ علاقہ چھین کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 1786 میں برطانوی لوگوں نے ملائیشیا میں اپنے قدم رکھے۔ 1826 تک برطانیہ نے پینانگ، ملائیکا، سنگاپور اور جزیرہ لبنان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ان علاقوں کو اپنا نو آبادیاتی بنا لیا۔ 20ویں صدی میں برطانیہ نے ملائیشیا کے کچھ حصوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ باقی کے 5 جزائر اس ریاست کا حصہ نہیں بنے۔ 19ویں صدی کے آخر تک بورنیو کا جزیرہ بھی ایک علیحدہ سلطنت کے طور پر کام کرتا رہا، لیکن یہ تمام علاقے پھر بھی برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جاپان نے حملہ کر کے ملایا، بورنیو، سراواک اور سنگاپور پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کی قبضے میں یہ علاقے 3 سال تک رہے۔ اس تمام عرصے کے دوران ملائیشیا میں نیشنلزم کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ 3 سال بعد اتحادی فوجوں نے دوبارہ ملائیشیا کو فتح کیا اور تمام سٹیٹس کو اکٹھا کر کے ملایا یونین قائم کی۔ ان تمام علاقوں میں سنگاپور بھی اس وقت ملایا سٹیٹ کا حصہ تھا۔ 1948 کے بعد ملایا کمیونسٹ پارٹی کی نگرانی میں برطانیہ کے خلاف گوریلا وار کا آغاز کر دیا گیا۔ 9 سال تک لگاتار اس گوریلا وار کے دوران آخرکار 31 اگست 1957 کو ملایا سلطنت کو آزادی مل گئی۔ 1965 میں سنگاپور کی ریاست نے ملائیشیا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ملائیشیا 13 ریاستوں اور 3 وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ملائیشیا کے اس بے باک اور نڈر لیڈر مہاتیر محمد کا، جنہوں نے کچھ سال کے عرصے ہی میں ملائیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ
अकवाम की साफ में ला खड़ा किया। महातीर मोहम्मद मुल्क की तारीख के तवील तरीन क़यादत करने वाले लीडर भी हैं। जुलाई 1981 में महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के वजीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। महातीर बिन मोहम्मद मलेशिया के चौथे वजीर आज़म थे। महातीर मोहम्मद मलेशिया पर सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले वजीर आज़म भी हैं। दोस्तों, मलेशिया का दारुल हुकूमत जनूबी एशिया का मशहूर और नहायत ही खूबसूरत शहर कुआलालंपुर है। यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान आबाद हैं, जबकि अकलीतों में हिंदू मत और बुद्ध मत को मानने वाले आबाद हैं। कुआलालंपुर मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। कुआलालंपुर की आबादी तकरीबन 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। कुआलालंपुर मलेशिया का सकाफती और इक्तसादी हब भी है। मलेशिया के पड़ोसी ममालिक में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, फिलिपाइन, सिंगापुर और वियतनाम है। चाइना सी मलेशिया को दो हिस्सों मशरकी और मगरबी हिस्से में तकसीम करता है। मगरबी हिस्सा मुल्क के 40% रकबे पर मुश्तमिल है। मगरबी मलेशिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट कोर्बियो है। इस पहाड़ की ऊंचाई 7162 फुट है। मशरकी मलेशिया बोर्नियो के जजीरे पर फैला हुआ है। मशरकी मलेशिया की साहिली पट्टी 2607 किलोमीटर लंबी है। मशरकी मलेशिया में वाक़या माउंट किनाबालू वाक़या है। ये चोटी मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 13,435 फुट है। माउंट किनाबालू नेशनल पार्क में वाक़या है। मलेशिया में सियाहत एक बहुत बड़ा कारोबार है। मलेशिया के खूबसूरत सियाती मकामात की कशिश से हर साल लाखों सयाह मलेशिया का सफर करते हैं। मलेशिया में कुल 30 नेशनल पार्क्स वाक़या हैं। किनाबालू नेशनल पार्क मलेशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इस मकाम को सन 2000 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। इस पार्क में 4500 के करीब हैवानात और नबातात की इकसाम पाई जाती हैं। मेलाका एंड जॉर्ज टाउन मलेशिया में वाक़या एक नहायती तारीखी मकाम है। ये मकाम 500 साल पुराने मलेशिया के सकाफती और तजारती तारीख का आज़ार करता है। शाह अब्दुल समद से मंसूब ट्विन टावर्स आसमान को छूती हुई नहायती बुलंदो बाला बिल्डिंग्स हैं। ट्विन टावर्स 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी थी। दीपुत्रा मास्क मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद पैरादाना पुत्रा से कुछ फासले पर वाक़या है। पैरादाना पुत्रा में मलेशियन वजीर आज़म का दफ्तर वाक़या है। इस मकाम पर दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथ से बनी हुई पुत्रा जाया झील भी वाक़या है। केक लोक सी जनूबी एशिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर है। इस मंदिर की तामीर का काम 1890 से लेकर 1930 के दरमियान हुआ। ये मंदिर कुल 7 मंजिल पर मुश्तमिल है। इस मंदिर की ऊंचाई 30 मीटर तक है। बाटू केव्स मलेशिया में वाक़या चूने के पत्थरों पर मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर गारों की एक बहुत बड़ी सीरीज है। यहाँ पर गोमबैक और सीला नगर के मंदिर भी वाक़या हैं। इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क में हिंदुओं के ये सबसे मशहूर मंदिर हैं। यहाँ पर हिंदुओं के हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं। लैंगकावी मलेशिया में एक नहायत ही खूबसूरत मकाम है। इस इलाके में तकरीबन 99 जजीरे वाक़या हैं और यहाँ पर मलेशिया के लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपनी छुट्टियाँ गुजारती है। ये तमाम जज़ायर मलेशिया की मगरबी साहिली पट्टी के साथ वाक़या हैं। 2003 में मलेशिया की सरजमीन पर 25 लाख सयाहों ने सफर किया। मलेशिया कुआलालंपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये एयरपोर्ट अपनी खूबसूरती में किसी का सानी नहीं। मलेशिया की सबसे छोटी रियासत मेलाका है, जो कि ऊंची इमारतों की वजह से मशहूर है। मेलाका की रियासत तारीखी लिहाज से अपना एक अलग मुकाम रखती है। मलेशिया को जनूबी एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। मलेशिया की इकोनॉमी जनूबी एशिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। मलेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बरामद करने वाला मुल्क है। एक मुसलमान मुल्क होने के नाते मलेशिया ने आज दिन तक इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया और उसके साथ किसी किस्म के सियासी और तजारती ताल्लुकात नहीं रखे। मलेशिया की करेंसी रिंगिट है। एक मलेशियन रिंगिट पाकिस्तानी 28 रुपए के बराबर है। मलेशिया में एक खास किस्म का फल पाया जाता है जिसे मकामी जुबान में पोमीलो बोला जाता है। ये फल दुनिया में सबसे बड़ा सिट्रस यानी तुर्श फल है। इसका साइज एक छोटे फुटबॉल जितना होता है और वजन 1 से 3 किलोग्राम के दरमियान होता है। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में साल के तकरीबन 200 दिन बारिश होती है। मलेशिया में किसी भी जुर्म की सजा में कोड़े मारना
एक आम बात है। मर्दों को ज्यादा से ज्यादा 24 कोड़े मारे जा सकते हैं, जबकि औरतों को कोड़े मारने की सजा नहीं। 10 साल से कम उम्र बच्चों और 50 साल से ज्यादा मर्दों को भी ये सजा नहीं दी जाती अगर वो रेप या किसी और संगीन जुर्म में मुलविस नहीं। मलेशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर कम्युनिज्म के खिलाफ जंग जीती गई। 12 साल पर मुश्तमिल इस गोरिल्ला जंग में कम्युनिस्ट फौजों को 1960 में जाकर शिकस्त से दो चार होना पड़ा। ये वक्त मलायन इमरजेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। 2010 के एक सर्वे के मुताबिक मलेशिया के लोगों की फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में पाए जाने वाले फ्रेंड्स की तादाद, फ्रेंड्स की रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक आम मलेशियन की फ्रेंड लिस्ट में 233 एवरेज फ्रेंड्स हैं। मलेशिया में ज्यादातर बिल्डिंग्स का चौथा फ्लोर नहीं होता, जबकि इसको 3A का नाम दिया जाता है। चाइनीज की तरह मलेशिया में 4 के अदद को मौत की अलामत समझा जाता है। मलेशिया में दिल का बाईपास करवाना बहुत ही सस्ता इलाज है। मलेशिया में दिल का बाईपास करवाने के टोटल अखराजात $9,000 है, जबकि यही दिल का बाईपास अमेरिका में $1,30,000 में होता है। मलेशिया दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला मुल्क है। 2011 में मलेशिया ने 9,96,673 मैट्रिक टन रबड़ बरामद की। मलेशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त भी पाया जाता है। इस दरख्त को मकामी जुबान में ताओ लैंड बोला जाता है। इस दरख्त का कतर 10 फुट और ऊंचाई 262 फुट तक है। मलेशिया की कौमी जुबान मलेशियन जुबान है, जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लिश जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा सांप भी पाया जाता है। इस सांप को किंग कोबरा का नाम दिया गया है। ये सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इस सांप की लंबाई 18.8 फुट तक होती है। मलेशिया का कौमी खाना नेसी लीमाक है। इस खाने में चावल नारियल के दूध में मिलाकर पकाए जाते हैं और फिर इसको पंदान के पत्ते पर डालकर मेहमानों को पेश किया जाता है। मलेशिया का कौमी जानवर माले टाइगर है। मलेशिया के पार्लिमानी निजाम की मुद्दत 5 साल है। हर 5 साल बाद मलेशिया में इलेक्शन करवाए जाते हैं और मुल्क का एक नया सरबराह मुंतखब किया जाता है। मलेशिया का शुमार एशिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में होता है। मलेशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दुनिया में 25वां नंबर और एशिया में 8वां नंबर है। मलेशिया अपने मजबूत और खूबसूरत रोड नेटवर्क की वजह से दुनिया में 19वें नंबर पर आता है। मलेशिया का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जनूबी एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर है। मलेशिया के 95% लोगों को पीने के साफ पानी की सहूलत मुयस्सर है। मलेशिया में एक आम बच्चे के लिए प्राइमरी तक तालीम हासिल करना लाजमी है। व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो मलेशिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।